प्रैक्टिस किया होगा आपने? Yes, Ajay sir, I have questions. हाँ, एक मिनट रुकिए, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, अभी क्रॉस टॉक नहीं करना है किसी ने, पहले मैंने बोल दिया 3.0। Ajay sir, you're on mute. कैमरा कहाँ से ऑफ होगा? माइक की साइड वाले ऑप्शन पे स्टॉप वीडियो। यस सर। शेयर द स्क्रीन। हाँ जी, बताओ क्या बोल रहे हो आप? क्वेश्चन था किसी का? Yes. Okay, so general question hai, I don't know whether it's gonna make any sense over here or not, but it's relevant to the course which we are covering. So let's take an example. If we worked on any of the code which is like on day 1 or day 2, because every day we are creating a new file for every day, whenever we are covering any topic. So we are just performing the exercise and we are doing so the output which we get over here on under terminal. So why does the output go away? First question. And the second question is, if I am working on the day 1 file, if I run any output over there, uh, will the other files which I have saved on the left hand side under Python will also show the output? Because when I'm putting any when I'm running any print command over there, I'm getting the output in every of my files. So are they interlinked with each other, or if I'm working on any one particular file, that should show the output on one file only? Why it's reflecting on the other files as well? No, it should not reflect. If you suppose this is your now day 3, Okay. and if I create, let's say, print, this is my loops session. Okay, so now when you run this is only for this particular module. See that this output has nothing to do with the other modules. They are different. Okay. Now, if you're asking me why we create the different modules, then so basically the point is, suppose now you have a project where what you have to do is you have to do sort of Excel automation. Let's say you have a folder here, and in this folder there are, let's say, 100 Excel files. Now you want to open these files and you want to combine the data. You want to accumulate the data in one Excel. You want to compile the data from all these 100 Excel files, and then you need to create a one standard file. Maybe on that file, then you need to do some sorting, filtering, VLOOKUPs, data cleaning, and then you want to create some report, maybe pivots, or maybe just graphs. So that project
And let's say there is another project which is a very different project. It is a project where suppose you are connecting with SQL Server, you are pulling the data from there, then you are again doing some other automation. So idea is that we keep every program in different modules, because in one module I will be working with only one project, and that project may take, let's say, 500 lines, maybe 100 lines. So we don't want to confuse ourselves, if because right now I've named this as one underscore day. So in your case, then you will say, this is a project folder accumulation, this is a project, let's say, sending emails, this is a project maybe creating graphs, or maybe connecting with the database like SQL Server. So this is why we create the modules, right? Of course, if I want, I can copy all these different whatever we have created here. These all the these programs we can create this. We can put this under one module also. But why I'm doing this? Why I'm keeping them separate? So when you're going to practice, you should not get confused, because obviously when you're going to practice, then you would know that on the day one, what are my targets, how I have to achieve, what we did actually. Then day two, day three, systematically we are going. From Python side, there's no restriction. You can keep the entire code in one module also. But then, as I said, projects are different. And when the projects are different, you never want to run the codes like this, that whatever I select, only that particular code should run. You will just simply say that, I want to run this. And you know that because in this entire module, there is the project that you have created, this belongs to only that particular project. So there's no mixing. There's no other project here. So that is the reason we create these. And third is, uh, when you said that why the screen gets cleared, I didn't get that, because lines, suppose if you write like this is third session, for example. Now, when you're going to run this will run from the top to bottom. You will have all the print commands here. So this, because see, when the pointer reaches to the line 1, it basically goes through every line, right? So if you have 500 lines here, and if you're going to run this 500 times, every time those 500 lines will run. If you don't want to skip the particular part, then as I said, we will simply go and say comment. So we'll put this, what was the shortcut key, guys? Control front slash. Control front slash. So that is the point. Otherwise, these modules are not related with each other. They are different. The output that you see here, that has nothing to do with these. So if I'm running the output for under the file day 1, and that output will not show under day any other file, right? No, you won't, because whenever you say run the file in the terminal, what happens? Everything gets reset, right? Everything gets reset. Python again, the compiler again goes to the line first, and it starts printing the, it starts reading the line from there. So I'm sorry to interrupt you. Right now we are in the session which is like day 3 session, right? Now if you just go back to the day 1 session, you will see the same output in this terminal also. That no, this is before you run this particular thing, because right now you are not running the day 1. Yes. Yeah. So basically, see, the point is, if let me right click here and I say run this particular Python code here. Look at this now. Okay. Now this is something that you see here, guys. This is not a part of third module. This is a day 1, right? Okay. Clear? Yes. And if you asking me that, like, if suppose you want this setting to be changed, that because right now when you're running this, there is a 10+2 somewhere here. I don't know where. Yeah, see, this 10+2 is coming, right? But if you pay attention here, this is my loop session. This is the third session. This is from the previous module that you have here. So in case if you want to get, like, suppose you don't want to see these things, you want to start from the very blank screen, then just type in here 2 lines. See this? Because I personally prefer this.
इवन दैट डे आल्सो आई टोल्ड यू एवरीवन कि ये लाइंस में लिख रहा हूँ, डोंट माइंड इट, इसको पूछना नहीं अभी आपने, बट लाइंस आई एम राइटिंग इट. सो दीज आर द लाइंस. दिस इज अ लाइब्रेरी, जस्ट import this, import OS. ओके, दिस इज द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी क्या है अभी हमें नहीं पता है, बट आप इसको ऐसे रख लो हर मॉड्यूल में. CLS मीन्स क्लियर, सिस्टम क्लियर. अब आप देखो इसमें क्या होगा कि यहाँ चलते हैं. ये लेट मी रन दिस. सी दैट एवरीथिंग इज क्लियर. उसने सब क्लियर कर दिया. और अब जो आपको यहाँ मिलेगा, जो से मिलेगा वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है. ठीक है, तो मतलब अगर आप ये नहीं लिखोगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वो पुरानी चीज़ें उसमें आपको दिखती रहती हैं. बट ये क्या करता है, स्क्रीन पूरी क्लियर कर देता है एक बार और रीस्टार्ट करता है फिर. तो ये आपकी चॉइस है. इसमें आप करोगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा मुझे कैसे रखना है. ठीक है सर, ठीक है सर. सो लूप्स कर रहे थे हम एवरीवन. लूप्स का हमारा जो सेशन चल रहा था, हमने इफ कर लिए थे, राइट. एंड लेट मी सी. हाँ, ये था. दिस इज द पॉइंट वेयर विल कनेक्ट फॉर लूप्स विद लिस्ट. तो अभी रुकते हैं 1 मिनट. लूप्स में और भी देख लेते हैं क्या है हमारे पास. एक मिनट. सिस्टम हैंग हो गया. 1 सेकेंड. So we will do the list later. First let us cover the loops. So we have already started for loops. ठीक है, I want to know the use of if statements with for loops, and then nested loops and while loop. उसके बाद फिर हम आगे करते हैं कुछ और. ओके, लूप आप ऑलरेडी देख चुके हो, उस दिन हमने बात की थी इसके ऊपर. अब इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं फटाफट से. क्या क्या एग्जांपल्स ही दे रहा है. प्रिंट द इवन नंबर्स. ओके, अच्छा एग्जांपल है. प्रिंट इवन नंबर्स. इवन नंबर्स अगर आपको प्रिंट करने हो, फॉर एग्जांपल 1 to 10 के बीच में, कैसे करेंगे? ये हमने कर लिया था लास्ट टाइम, राइट. रिमाइंडर निकाल के. तो मेरे ख्याल से ये तुम छोड़ देते हैं. ये याद है आपको, हमने किया था, राइट. डिवाइडेड बाय 2. डिवाइड नहीं है सब, ऑब्वियसली दिस इज टू कैलकुलेट द रिमाइंडर बेसिकली. तो ये तुमने कर ही लिया था. अच्छा हाँ, प्रिंट द नंबर ग्रेटर देन 5. ये कैसे आप करोगे बताओ? प्रिंट the numbers greater than 5. greater than 5 कहां तक, लेकिन कहां तक जाना है? print numbers from 1 to 10 only if they are greater than 5. ठीक है, कैसे करेंगे? वेरी इजी, इफ लगा देंगे. लूप कैसे लगाते हैं फिर? रिमेंबर, फॉर एक अपना वेरिएबल लेते हैं x in range. तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, राइट, अप टू 11.
ठीक है जी। अगर आपने प्रिंट एक्स कर दिया तो क्या होगा, वी विल हैव 1 2 3 4 5, हाँ सब आ जाएंगे, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार, लेट्स रन दिस। ये देखिए 1 to 10 आ गया, ठीक है। प्रिंट करने से पहले हम लोग सिंपल एक लॉजिक लगाएंगे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 देन ओनली प्रिंट। अब इफ के अंदर इंडेंटेशन जरूर देंगे, बस इतना से काम है, राइट। एल्स का आपको पता ही है, मैंने आप रिपीट नहीं करूंगा मैं अब वो सब। ये देखिए, किसी को कोई डाउट तो यू कैन आस्क। अगला एग्जांपल क्या है, ये सिंपल था बहुत। सो मल्टीपल कंडीशंस, ये क्या क्वेश्चन है, प्रिंट numbers 1 to 20 that are greater than 10 and even। हाँ बताइए, ये करना है आपको प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो 1 to 20 नंबर्स को प्रिंट तो करना है, उसके बीच का क्राइटेरिया भी है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले 1 to 20 आएगा नहीं, तब तक हम आगे बढ़ेंगे कैसे। तो ये जो लूप है ये आपका अप टू 21 चलना चाहिए, है ना। तो पहले आप लूप सेट कीजिए, रेंज 1 to 21। अब प्रिंट करके देख लीजिए कि क्या लूप सही चल रहा है। शुरू में ऐसे ही करते हैं, लूप 20 टाइम चल रहा है तो इट मीन्स गुड, राइट। अब यहां क्या करेंगे हम, इफ x इज ग्रेटर देन 10, करेक्ट, एंड लग जाएगा। इवन कैसे पता करेंगे, x या इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यहां पे कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, फिर एरर आ जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो वी वांट टू प्रिंट दैट नंबर, बस इतना से काम है, प्रिंट x, ठीक है, इस तरह से। आ गया ना, ओके। तो ये मैं रन कर रहा था, एरर आया इसमें, आई थिंक ये लाइन रह गया कमेंट करना, तो चलिए और ये भी कमेंट कर देते हैं। ये कंडीशन है 12 14 16 18 20, क्लियर है, सिंपल। तो जैसे आपको इफ लगाना है आप लगा सकते हो, इसमें इफ एलिफ भी लग जाएंगे, वो तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट क्या है हमारा, ठीक है, ओके। अब अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं थैंक यू, अब क्या होगा बताओ, कितनी बार आएगा, हाँ यस, एक बार आएगा। किसी को अगर ये है कि 20 टाइम्स आएगा तो आप प्रैक्टिस करो भाई,
ये देखो, ठीक है, ये चीज। तो ये आपके फॉर लूप्स हैं। और कुछ खास इसमें बहुत सारे लूप्स आने वाले हैं, बहुत वैरायटीज हैं पाइथन में। अच्छा देखो, वो बोल रहा है कोई बिजनेस प्रॉब्लम है, क्या है? सपोज एम्प्लॉय IDs range from 101 to 110, print only the IDs that are, कर लिया हमने। ओके, इफ एल्स भी बोल रहा है, वेरी नाइस, चलो ये भी ले लेते हैं। देखो, इफ एल्स नहीं किया हमने अभी तक, इफ ही कर रहे थे, मतलब एल्स नहीं ले रहे थे, तो हम ये भी ले लेते हैं। प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 एंड टेल वेदर ईच नंबर इज इवन और ऑड। अब आपको दोनों बताने हैं, ठीक है। सो 1 to 5 के लिए फॉर x इन रेंज, ठीक है, प्रिंट इफ x 2 equals to 0, प्रिंट इवन। लेकिन इवन क्या है वो भी मैं चाहता हूं लिखना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए x कॉमा, समझ गए, ठीक है ना। इसी दिन के लिए हमने सेपरेटर यूज किया था, मतलब ये कॉमा अलग अलग पैरामीटर्स, नॉट सेपरेटर एक्चुअली। मैंने आपको बताया था ना, हम देखेंगे इसका यूज। मतलब अगर आपको याद हो, हमने पहले स्टार्ट किया था तो मैं आपको ऐसे बता रहा था कि हेलो इट इज अ ट्रेनिंग, फिर हमने इसी चीज को ऐसे कर दिया, हेलो अलग से इट कर दिया था। तो मैं आपको उस टाइम बता रहा था कि कॉमा हम यूज करते हैं। तो आप बोलो एक ही लाइन में क्यों नहीं लिख दिया आपने जब वो चल रहा है? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ पे आप एक्स नहीं लिख सकते ऐसे। अगर आपने ऐसे लिखा तो एक्स ही प्रिंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल्स वी नेवर पुट द कोट्स अराउंड द वेरिएबल्स, ठीक है, बिकॉज वो स्ट्रिंग कंसिडर हो जाएगा नहीं तो ये आप कर सकते हो, एक स्पेस छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली अगर वो इवन नहीं हुआ तो क्या होगा? ऑड होगा, ठीक है। प्रिंट x और ये सिस्टम है आपका। लेट्स रन दिस, लीजिए, देखो सही है, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। हाँ, मैंने कोड लगा दिया, देखिए मैं आपको बता रहा था और मैंने अब क्या दिक्कत होगी बताओ? एम्परसेंड कैरेक्टर इज नॉट अलाउड। ओके, कहाँ क्या गड़बड़ हुई है? कहाँ बोल रहा है ये? ऊपर तो नहीं कोई दिक्कत? सब कुछ तो ठीक है। एल्स एक्स, एक मिनट, डन। स्पेस यू डोंट, ये स्पेस नहीं, लेट्स नॉट गिव द स्पेस हियर। हाँ, लेकिन वो डाल सकते हैं, बट जैसे ऐसे लिख दूं तो इट्स अलाउड। मैंने इस तरह से दिया हुआ था इसको। फर्स्ट लेटर है ना वो, फर्स्ट हमारा कैरेक्टर है, उसके लिए वो मुझे भी नहीं मालूम था, मैं देख ही रहा हूँ। ये देखो ऐसे करके देखो, जनरली अगर आप ऐसे लिखो इट इज एन इवन, अब तो स्पेस का कोई चक्कर नहीं है, मतलब बीच में स्पेस इज ओके, ठीक है। ये देखिए वो ये कह रहा है कि अब ऐसे करके देखते हैं, देखिए मतलब बिगनिंग में मैंने स्पेस दे दिया उसको ना, देखो, हाँ अभी भी दे रहा है। सो इसमें करके देखते हैं एक बार। समथिंग ऐसे था पहले, नाउ इट इज वर्किंग, आई डोंट नो क्या होगा। हाँ, बट एनीवेज वही मेरे लिए भी दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग, बट इट्स अलाउड।
ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज ये तो अगेन छोटी छोटी चीजें थी, नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप लगाना आपको सीखना पड़ेगा और यही चीज आपको परेशान करेगी बाद में। इसको हमने बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें आपको, ठीक है। देखो पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे आपको ये तो पता ही है, दिस इज लेट्स से 1 to 5 प्रिंट एक्स, एक्स आ गया, सबको पता है क्या होगा, करेक्ट। नाउ चार्जर नहीं चल रहा है क्या, गाइस वन सेकंड। तो बहुत हो गया। आ गया, नहीं मैं यूज तो करते ही हूँ। हाँ, अब देखिए लूप के अंदर लूप, पहले आप देखो करते क्या है, बाद में जब यूज करना होगा तो करते रहेंगे, मतलब जरूरत कब पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे फॉर y in range let's say 100 103 print y। अब देखो आपको ये समझना है, आपको पता है स्पेस का इंडेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट एंटर मार के आप थोड़ा नीचे तो लेके आ सकते हो, ठीक है। अब ये है लूप के अंदर लूप, जैसे आपने नेस्टेड इफ किए थे वैसे होते हैं नेस्टेड लूप्स। एक रूल आपको हमेशा याद रखना है कि जब लूप चलते हैं तो जो इंटरनल लूप है, ठीक है, इनर लूप है, वो पहले चलती है, ठीक है। जैसे जैसे देखिए ये लूप है, इसको टास्क मिल जाएगा कि भाई आपको 1 2 3 and 4 ये 3 बार चलना है। तो पॉइंटर आया, उसने यहाँ पे देखा प्रिंट एक्स, उसने फटाफट से क्या करना है, प्रिंट कर देना 1, करेक्ट। अब ऑब्वियसली मैंने आपको बोला नीचे जाएगा लूप, मतलब कोड आपका, जब वो नीचे जाएगा तो देखिएगा एक और लूप है, और आपको पता है लूप जब तक फिनिश नहीं होगी वो बाहर नहीं आएगा वहां से। ये तो रूल है फॉर लूप का, आइटरेशन पे चलता है ये, रेपिटेशन पे। ये फटाफट से y के साथ बिजी हो जाएगा, प्रिंट y 1 के बाद क्या आएगा 100, 100 के बाद क्या आएगा, जब तक ये लूप फिनिश नहीं होगा ये बाहर वाले लूप दोबारा x पे नहीं जाएगा। रिमेंबर अभी x की वैल्यू 1 ही है, x को अभी 2 भी होना है, लेकिन 2 तभी होगा जब वो यहां से फ्री होगा, इस लूप को छोड़ नहीं सकते ना। तो 101 आएगा, फिर 102 आएगा, समझे आप। उसके बाद ये लूप आउट हो जाएगा, फिर ये लूप जाएगा वापस यहाँ, ठीक है। अब x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी अब 2, क्योंकि 1 हो चुका था। जब x की वैल्यू 2 हुई लूप फिर अंदर आया, पूरा का पूरा ये पोर्शन दोबारा से रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पे y फिर से रीसेट हो जाएगा। आप बोलोगे सर 102 था y, तो हाँ, लेकिन जब आपने इस लूप को दोबारा से बोला रन करने को वो फिर से 100 से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये चीज फिर रिपीट हो जाएगी, फिर दोबारा x पे जाएगा 3 हो जाएगा, फिर ये चीज दोबारा रिपीट हो, इस तरह से लूप चलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका लूप के अंदर लूप होगा, जो इनर लूप है वो पहले रन होगा, मतलब उसको वो ऐसे बाहर नहीं जा सकता है वो, सीरियस, ठीक है ना। दिस इज हाउ लूप इन लूप वर्क्स।
ओके, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, इन्होंने एक डिफरेंट एग्जांपल से क्या है वो भी कर लेते हैं। करना क्या, मैं आपको पूछता हूं, आप एक बात ये बताओ कि ये तो आपको क्लियर हो गया, ये लूप है, मुझे बताओ क्या प्रिंट होगा जब फाइनली कोड रन होगा। क्या प्रिंट होगा? जब यहां पे वो आएगा प्रिंट करने, एक्स क्या होगा? 1, 1 कॉमा वाई क्या होगा? 100। उसके बाद यस, समझे ऐसे, फिर उसके बाद 2, ठीक है ना, क्योंकि एक्स तो चेंज नहीं होगा, यहां पर ये वाई लूप चलता रहेगा, एक्स तो एक बार जो लेके आ गया वो यहीं पे रहेगा, जब तक यहां से हम वापस दोबारा नहीं गए बाहर तब तक एक्स चेंज नहीं होगा। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ओके, क्या एरर आ गया? अगेन समथिंग, लो आई थिंक की प्रेस गलत हो रही है। ये देखिए 100, 101, 102, 200, 201, 202। तो ये लूप जब फिनिश होता है तभी वो बाहर जाके फिर ये देखता है कि मुझे अब आउटर लूप को रन करना है कि नहीं, और आपको फॉर लूप्स को बताना नहीं पड़ता कि कब एग्जिट करना है, उनको पता होता है एग्जिट कब करना है, ठीक है। तो ये आइट्रेशन पे चलते हैं। ओके, अब देखिए उसने एक टेबल भी प्रिंट किया हुआ है, आप चाहो तो कर सकते हो। देखो, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपको प्रैक्टिस के लिए, ये देखिए, ये जैसे आपको टू का टेबल किसी को जैसे बताना है, देखो उसने कहा फॉर टेबल इन रेंज, ये तो वेरिएबल है, आप सबको पता है, मैं इसको एक्स लिखता हूँ लेकिन उसने नाम अच्छा दिया, मैंने आपको हमेशा बोला नाम अच्छा देंगे, टेबल बना रहा है इसलिए उसने टेबल नाम दे दिया, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये तो आप कुछ भी दे दो। 2 से लेके 4 तक जाने वाला है, राइट, 2 से 4 चला, अब इसके बाद यहाँ पे उसने क्या किया, फॉर नंबर इन रेंज 1 to 6, यानी ये 1 to 6 चलेगा, ये 1 to 6 चलेगा, 1 to 5। अब देखो प्रिंट में क्या कर रहा है वो, प्रिंट में उसने क्या, टेबल, टेबल क्या होगा 2, 2 कॉमा ये मल्टीप्लाई है, ये दिखेगा मल्टीप्लाई की तरह, एक्स नहीं है ये, एक्स है बट मल्टीप्लाई दिखाना चाहता है वो, 2 मल्टीप्लाई बाय ये क्या होगा 1, यहाँ पे 1 आया होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, उसने ये कोटेशन बना ली एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से, इक्वल्स टू भी लगा दिया। तो बेसिकली ये हो रहा है कि ये टेबल यहाँ से ये वैल्यू पिक करके आ रहा है, यहाँ पे ये हो गया 2, ये नंबर इसने उठा लिया यहाँ से 1, ये इनटू एज इट इज रहेगा, डबल कोट्स लगा हुआ है, ये नंबर हो गया 1, इक्वल्स टू उसने दिखाना है ऐसे दिखा देगा, फाइनली हो क्या रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 1 2 2, वेरी नाइस, ठीक है ना। तो यू कैन आल्सो क्रिएट दीज टाइप ऑफ टेबल्स। अब ऑब्वियसली ये कहां तक चलेगा 5 तक, 2 तो 2 ही रहेगा, आपको पता है, बिकॉज जब तक हम इस लूप में बिजी हैं तब तक टेबल नहीं चेंज होगा, वेरिएबल 2 अगेन 2 रहा, लेकिन नंबर 2 हो गया, 2 इक्वल्स टू जो भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप उन्हीं को मल्टीप्लाई कर रहे हो 4, इस तरह से फाइनली ये चलेगा 2 into 5 तक, करेक्ट। जब ये खत्म हो जाएगा, ये लूप फटाफट से यहां आ जाएगा वापस, देन दिस विल बी 3, ये सारा फिर इसके नीचे वी विल हैव 3 मल्टीप्लाई बाय, तो हमारे पास 2 का टेबल आ जाएगा, 3 का आ जाएगा, 4 का आ जाएगा। आप बेशक 10 तक रखना, आप 10 तक रख लो। ये देखिए
क्लियर है? तो इस तरह से एक उसने बहुत छोटा सा एक अच्छा एग्जाम्पल लेके बताया आपको। देखो इनफैक्ट मैं इसको 11 कर देता हूँ, करना है तो पूरा ही करते हैं। नेस्टेड लूप्स समझ रहे हो आप? नेस्टेड लूप देखो, ऐसे टेबल बनाने के लिए आप नेस्टेड लूप पे कितने सारे डिपेंडेंट हो, बिकॉज नेस्टेड लूप बेसिकली क्या कर रहा है? नेस्टेड लूप जब हम बनाते हैं हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस ये होता है कि जो बाहर वाला लूप है वो अंदर वाले लूप में कहीं ना कहीं किसी तरीके से यूज हो रहा होता है, नहीं तो जरूरत क्या है, राइट? तो आप ऐसी ऐसी चीजें अलग से नहीं बना पाओगे, बिकॉज आपको पता है ये जो 2 है ये यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो इसकी आउटपुट यहाँ पे आ रही है और ये तो चल ही रहा है और फिर ये भी यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है ना? तो नेस्टेड लूप ऐसे नहीं कि बस फॉर के अंदर फॉर, उसका पर्पस है एक, उस पर्पस को यूज करने के लिए वो इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है? ओके, आगे क्या है? प्रिंट द पेयर ऑफ द नंबर्स वेयर द सम इज ग्रेटर देन 5। ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है? उसने इफ वगैरह लगाया हुआ है, वही फॉर के अंदर फॉर लूप है, ठीक है? वेयर नेस्टेड लूप्स बिकम्स यूजफुल, ओके? एनीवेज, अच्छा अब हम बात करते हैं ब्रेक। ब्रेक पाइथन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लूप्स में। आपको पता है कि फॉर लूप मैंने अभी बताया था आपको कि जितनी बार आप उसको बोलोगे रन करने को वो रन होगा। अगर आपको लूप रन करने से पहले बाहर आ जाना है फिर आप क्या करोगे? समझ रहे हो? जैसे सिस्टम में इशू हो रहा है आज। एक मिनट, चलो जब तक मैं वैसे आपको हैंग हो गया ये। हाँ देखो, सपोज मैंने कहा फॉर एक्स इन रेंज 1 to 100, ठीक है? आपको समझाने के लिए, आपको पता है कि ये नंबर 1 to 100 रन होगा। अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि इफ x is greater than 10 ब्रेक, अब क्या होगा? आ गया। इफ x is greater than 10 ब्रेक, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद ये गया नहीं, जाना कहां तक था? 100 तक। क्यों नहीं गया? बिकॉज आपने उसको बोल दिया है कि लूप से बाहर आना है। ब्रेक मीन्स लूप से बाहर आना है। ये हम कर सकते हैं। इसका फायदा कहाँ होगा? जैसे सपोज आप कोई चीज सर्च कर रहे हो, उसके पास 1 लाख रोज हैं। अब मान के चलो जो चीज आप सर्च कर रहे हो वो उसको 10th रो पे मिल गई, तो आप उसे बोल सकते हो कि अगर आपको वो चीज मिल जाती तो ब्रेक कर दो लूप को। नहीं तो इमेजिन करो वो लूप कितनी बार चलेगा अननेसेसरी। ऑलरेडी उसको चीज मिल चुकी है, वो स्टोर करके बैठा है, वो सिर्फ वेट कर रहा है कि लूप कब खत्म हो, फिर मैं आगे जाके जो भी उसका करना है। समझे आप?
तो ये आपको ऐसे केसेस में बहुत हेल्प करेगा, आपका टाइम बचेगा ना, कोड नहीं तो बहुत टाइम ले लेगा। अगर कोई लूप इतनी बार, जैसे 1 मिलियन टाइम्स कोई, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, या मे बी 80,000 टाइम्स लूप रन हो रहा है, वो टाइम लेगा आपका। तो अगर आपने यहाँ पे कोई ऐसा कोड बना दिया अपनी समझदारी से कि इसको जो चाहिए वो मिल जाए, तो ब्रेक कर दे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इसमें मिलेगा कहाँ, इसलिए हमें दोनों चीजों को लगाना पड़ रहा है, लूप को भी और ब्रेक को भी। अगर आप नहीं लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पर वो चलता रहेगा, तो इससे हम टाइम सेव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज, जैसे आपके पास 1 लाख ट्रांजेक्शन आईडीज किसी ने दे दिया आपको एक्सेल में या टेक्स्ट फाइल में, वो डेटा यहाँ आ गया, आपको बोलेगा कि यार इनमें ना एक ऐसा ट्रांजेक्शन आईडी है जो इनवैलिड है, अगर वो आपको मिल जाता है तो हमें बताओ, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे वो ट्रांजेक्शन आईडी मिले, वी विल ब्रेक इट, आगे फिर लूप को हमें कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज। तो बेसिकली आपको लूप में ज्यादा पावरफुल बना देगा ये, क्योंकि आपके पास ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा, फिर आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे मुझे इतनी बार रन करना ही है, कभी मतलब इसकी जरूरत पड़ जाए तो ऐसा नहीं हर बार आप इसको यूज करोगे, ठीक है। और आगे हो सकता है हमें इसकी जरूरत कहीं पड़ जाए। दूसरा एक और बड़ा अच्छा पार्ट है कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू क्या करता है, कॉन्टिन्यू ये कहता है कि आप जो लूप रन कर रहे हो उसमें किसी चीज को स्किप किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए लूप को बोला गया है 1 to 10 रन कीजिए, ठीक है। बीच में बोला गया कि अगर वो नंबर 5 हो गया तो आप कंटिन्यू करना, अदरवाइज क्या है, अदरवाइज प्रिंट करना है। इसका क्या मतलब है, ब्रेक तो आपने समझ ही लिया, लूप से बाहर आ जाओगे। कंटिन्यू इज नॉट ब्रेक, कंटिन्यू करो, लेकिन ये आइडियली अगर हम इसको सीधा ऐसे करें, अब आपको पता है कि नंबर 1 to 10 आएगा, है ना, ये भी आपको बहुत पावरफुल बनाता है लूप्स में, ठीक है। ये देखिए 1 to 10 आ गया, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर नंबर 5 है तो कंटिन्यू करना है, इसका मतलब बेसिकली स्किप करना है। आप ऐसे समझो इसको स्किप करना है, ठीक है। मतलब जैसे ही 5 हुआ वो यहां नहीं जाएगा, स्किप कर देगा, स्किप करेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं लूप से बाहर आएगा, फिर वो आगे चला जाएगा अगर उसको जाना होगा। तो यहाँ पे 5 प्रिंट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली हमारा प्लान है। इंडेंटेशन का खास ख्याल रखेंगे। देखिए 5 कहाँ है, समझ रहे हो, ठीक है। तो कंटिन्यू इज बेसिकली स्किप, यानी आप कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम जब बना रहे हो तो कंटिन्यू क्या किया, उस पूरे प्रोग्राम को स्किप भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे से प्रिंट हो रहा है, बट हो सकता था यहाँ पे हमने 5-6 लाइन 10 लाइन 15 लाइन के कोड लिखा हो, वो कुछ भी कर रहा हो, वो एक्सेल फाइल को ओपन कर रहा हो, वहां से डेटा कॉपी कर रहा हो, पेस्ट कर रहा हो, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा तो उसने इसको, क्योंकि जब नंबर 5 होगा तो आप बेसिकली यहाँ आ जाओगे ना, आप इधर आ जाओगे, जब वो यहाँ पे आएगा तो वो कहेगा आप इस पूरे जो भी आपको करना है उसको स्किप करो, तो पूरे पोर्शन को स्किप कर देगा, फटाफट से लूप बाहर दोबारा से अगली वैल्यू के लिए चला जाएगा। ये चीज है, सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कि नंबर 5 है तो इंडेंटेशन देनी है। आप ऐसे करोगे तो आपको पता है प्रॉब्लम आ जाएगी, देखो वो दिखा ही रहा है, इंडेंटेशन तो चाहिए इफ के अंदर। जब इफ के अंदर आपने इंडेंटेशन दे दी तो ये जो प्रिंट नंबर है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नंबर हमने ऐसे क्यों नहीं रखा, मतलब ऐसे, ये ऐसे नहीं होगा ये, बिकॉज कंटिन्यू के नीचे नहीं आ सकती ये चीज, कंटिन्यू अलग सेक्शन है, ठीक है ना। कंटिन्यू तो बेसिकली स्किप है, तो स्किप करना क्या है, अगर आप इफ लग रहे हो तो इफ लिख रहे हो, आपने लास्ट टाइम भी देखा था, इफ के लिए हमें एटलीस्ट देन वाला एरिया तो चाहिए ना, एल्स तो आप लिखो ना लिखो आपकी मर्जी होती है, ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, इफ नंबर इक्वल्स टू 5 स्किप, तो वो करेगा क्या उससे, फिर उसको कुछ करने को भी तो देना पड़ेगा ना आपको, राइट। तो ये चीज का खास ख्याल रखना है, ठीक है।
तो ब्रेक भी मिल गया, कंटिन्यू भी मिल गया। अब व्हाइल लूप, व्हाइल लूप देखें, व्हाइल लूप फटाफट से कर लेते हैं, बिकॉज व्हाइल में सिर्फ ये फर्क है कि व्हाइल चलता है कंडीशन पे। व्हाइल में आप ये नहीं बताते मुझे 100 बार रन होना है, व्हाइल में आप कहते हो जब तक ये कंडीशन मीट नहीं होती है रन करते रहो। मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है रन करते रहो, जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी ऑटोमेटिकली कोड बाहर आ जाएगा। कंडीशनल लूप है ये, इट इज नॉट अ सीक्वेंशियल लूप और इज अ सीक्वेंशियल लूप, बिकॉज वो आइट्रेशन पे रन करता है, सीक्वेंस पे चलता है। उसको एक बार जो बोल दिया उतनी बार रन होगा, नंबर ऑफ टाइम्स। वाइल में ऐसा नहीं होता। तो वाइल से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सारा कुछ सेम है, बस लिखने का तरीका ये देख लीजिए आप। आपने लिखा वाइल, ये कंडीशन है, ये सारी कोलन आपको पता ही है, इसके नीचे ये सब चीजें वही पाइथन वाली हैं। वाइल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 5, कीप प्रिंटिंग द नंबर्स, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है, उस दिन कोई पूछ भी रहा था मुझे, उनको समझ नहीं आ रहा था जब असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। देखो पहले आप ध्यान से देखो, ये नंबर इक्वल टू 1 ऊपर लिया गया है सो दैट ये नंबर यहां 1 लेके आएगा, करेक्ट। वाइल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट द नंबर। एक बात बताओ, अगर मैंने ये अभी रन कर दिया लूप, क्या होगा? क्या हो जाएगा? हाँ, फिर उसके बाद 1 प्रिंट हो गया। अब लूप क्या करेगा? लूप दोबारा ऊपर जाएगा। नंबर क्या है? नंबर अभी भी 1 है, वो फिर लेस देन 5 हो गया, फिर आ गया, फिर जाएगा। समझ गए? लूप्स को बहुत ध्यान से रन करना है, ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ये कोड रुकेगा नहीं, वेरी डेंजरस, ठीक है। देखें, मैं इसको रन करता हूं, लो जी, ठीक है। रन हुआ कि नहीं? एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं, बिकॉज वो अब हमारे पास विंडो नहीं है वैसे। प्रिंट, मैं एक बार यहां लिख देता हूं, इट इज डन। तो जब ये आ जाएगा मतलब वी आर फाइन, ठीक है। देखें एक बार फिर से रन करके, आया ही नहीं, इट इज डन, इट्स नॉट कमिंग। स्टॉप, you don't have the point, okay। जनरली यहाँ पे स्टॉप ये जो होता है ना, कोड आ जाता है, बट somehow it is still running। एक काम करते हैं, नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1, ये लाइन में डाल रहा हूं, समझिए आप। अब नंबर 1 नहीं रहेगा जब भी लूप बार बार ऊपर रन होगा। 1 प्रिंट हो गया यहां पे 1 प्रिंट हो गया, इस लाइन में वो आया 1 प्लस 1 नंबर हो गया 2। वाइल लूप है, ऊपर जाएगा, चेक करेगा ना एक बार तो, चेक फेल हो रहा हूं मैं, नहीं हो रहा हूं। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू। फिर कोड यहां आएगा, फिर 1 के बाद 2 प्रिंट हो जाएगा। अब यही 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा। अब यही 2 3 हो जाएगा। 3 लेस देन 5, यस। 4 लेस देन 5, यस। 5 लेस देन इक्वल टू है, ट्रू। जैसे ही 6 आया, क्या करेगा वो? इमीडिएटली बाहर आके इट इज डन।
तो अब जब हम इसको रन करेंगे वी शुड सी द आंसर, इट इज डन आल्सो। ये लाइन है वो आप पूछ रहे थे ना कि ये कहाँ यूज होती होगी, ऐसे। आइए इसको एक बार रन करते हैं। एक मिनट, सम प्रॉब्लम, कुछ हो रहा है इसमें। एक मिनट मैं इसको दोबारा करता हूँ एक बार, कहीं वो इनफाइनाइट मोड पे ना हो। कोई स्पेस तो नहीं है यहाँ पे। वन सेकेंड। Let me put this here. It is not running. Seems. I don't get. It is done. What is wrong with this code? I can see the problem clearly from your screenshot. Your code as shown is actually correct. There's nothing wrong. You have this. Yes, this is what we want, right? Hey, Anache, your output is this. This means the Python program that is currently running is not executing this updated line. एक तो इसमें भी कुछ, हाँ वो तो वो कोड को नहीं रन कर रहा है, वही इनफाइनाइट में आई एम श्योर वो उस पे ही होगा। अब ये देखो, दिस इज नॉट अ कोड प्रॉब्लम, दिस इज अ सिस्टम रिलेटेड इशू। मोस्ट लाइकली VS Code is running an older saved version of this file. समझ गया? ये जैसे मैंने आपको बोला ना अभी, ऐसा हो सकता है आपके साथ भी। तो इनफाइनाइट वाला मोड से हम बाहर ही नहीं आ रहे हैं बिकॉज मुझे यहाँ पे वो ऑप्शन मिल नहीं रहा है, स्टॉप डिबगिंग, राइट? मतलब कोड को स्टॉप करने के लिए। एनीवेज, stop the current program because it is running indefinitely. ये वही हुआ है फिर, ठीक है? तो आइए देख इसको क्या बोल रहा है वो। Control C in the terminal, you should get something like this. That's fine. Control C, okay? Control C. I don't know. Run the file again. Right click this, select, ये तो हमने कर लिया। You should, okay, एक बार आप फिर ट्राई कर लें। Control C प्रेस मैंने किया है, अभी भी नहीं हो रहा है। Let me just do one thing. तो ये सब चीजें होती रहेंगी आपके साथ, ठीक है? अब देखें एक बार, इनफाइनाइट से बाहर आ गए हो। सिस्टम में कुछ इशू हो गया मेरे, मुझे लग रहा है। यस, स्लो हो गया, आई डोंट नो व्हाई।
1 2 3 5 इट इज डन। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, याद है आपको? कहां किया था हमने? ये कंपैरिजन ऑपरेटर किए थे, असाइनमेंट ऑपरेटर, याद है? ये देखिए, कोई पूछ भी रहा था जिनसे ये समझ नहीं आया, यही चीज हमने जो लिखी है, शॉर्टकट क्या है? प्लस इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 को एक्स प्लस इक्वल टू 5 भी आप लिख सकते हो, लिखने का तरीका है। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे भी लिखना चाहूं ये, तो आप किसी का कोड देखो, कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये चीज मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो वाइल में और फॉर में यही डिफरेंस है, ये कंडीशंस पे चलता है, कंडीशन जब तक मीट हो रही है चलता जाएगा, कंडीशन फेल कोड बाहर आ जाएगा। इसमें इसको पता होता है कि कितनी बार रन कर जाए, ये चीज है। तो जब भी आपको लगे कि ये कोड, आप जैसे अभी आपने देखा ना, आपके सामने प्रॉब्लम हुई, दैट्स बिकॉज ऑफ द लूप वेंट इनटू द इनफाइनाइट मोड। ठीक है, बिकॉज उसको बाहर ही नहीं मिल रहा था, तो हमने फिर उसको रीबूट किया एक बार। ठीक है, तो लूप्स जनरली आर सेम, लिखने का एक ढंग है। ठीक है, एनीवेज, सो नाउ वी नो द while loops also। अब हम एक काम करते हैं, देखो, कैन वी create some project using these learning? Let me see, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो, जिसमें सारी चीजें आपको रिवाइज भी हो जाए। क्या बोल रहा है वो? ये सब कर लिया है, एब्सोल्युटली दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड अ स्मॉल प्रोजेक्ट। वी विल बिल्ड इट विदाउट लिस्ट फंक्शन pandas, यस। देखें क्या है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट देखिए क्या है, इमेजिन अ कंपनी वांट्स टू एंटर सेल फॉर 5 salespeople. For every salesperson, the program should ask, enter sales name, salesperson name, enter the sales amount, then it should determine, मतलब ये आपसे पूछेगा वो सेल्स बंदे का नाम बताओ, जैसे लेट्स से ऐसे, sales amount 1000. If the sale is greater than this, excellent. If the sale is greater than this, good, average. ये बेकार प्रोजेक्ट है, ये तो सिंपल इनपुट बॉक्स दो बनवा लिया और इफ लगा दिया। नो, वी वांट समथिंग एल्स। ओके, अच्छा ये देखते हैं, मेरे दिमाग में आया अभी, गेस अ नंबर। देखें इसमें क्या क्या होगा, नंबर गेसिंग गेम, नंबर गेस करो। ठीक है, कंप्यूटर हैज अ सीक्रेट नंबर। ठीक है, ठीक है, हाँ ये ठीक है। द यूजर हैज टू गेस द नंबर। फॉर एवरी गेस, अगर गेस बहुत ज्यादा हाई है तो आए टू हाई, मतलब जैसे 7 है, उसने बोल दिया 17, तो सिस्टम आपका बोल दे ये तो बहुत हाई चले गया, या आपने बोल दिया 2 वेरी लो। इफ द गेस इज करेक्ट तो उसको हिंट भी मिलता रहेगा, समझ रहे हो? द गेम शुड कंटिन्यू अंटिल द यूजर गेसेस करेक्टली, ये है। बताओ, आइडिया दो, कैसे बनाएंगे? यानी आप उसको गेस देते रहोगे, सीक्रेट नंबर हमें ही पता है सिर्फ। लेट्स से सीक्रेट नंबर
क्या देना है, लेट्स से मैं दे देता हूँ 10, ये हमें पता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद अब आप यूजर से नंबर लोगे ऑब्वियसली, तो क्या करेंगे, गेस नंबर इनपुट, गेस द नंबर, ठीक है जी, ये सबको पता है। नंबर आ जाएगा स्क्रीन पे, इंट ले लेते हैं, तरीका कोई और भी हो सकता है, जैसे हम ठीक लग रहा है वैसे आप करेंगे। अब इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि इफ गेस नंबर, अगर गेस नंबर बड़ा है सीक्रेट से, है ना, तो वी कैन से प्रिंट नंबर इज हाई, नंबर इज हाई, ताकि उसको आइडिया मिल जाए कि भाई मुझे नीचे आना है, ठीक है। और क्या होगा, एलिफ लगा लें या एल्स लगा दें सीधा, एलिफ गेस नंबर अगर छोटा है सीक्रेट नंबर से तो प्रिंट नंबर इज लो, ये चीज है, समझ रहे हो। अच्छा अब देखो, और ऑब्वियसली अगर नंबर इक्वल हुआ तो प्रिंट यू गॉट इट, ठीक है, यही हो सकता है ना, और क्या होगा। पहले अब इसको रन करके देखते हैं। सिंटैक्स एरर, इनवैलिड, क्या एरर हो गया, if the guess number is line 86, oh, guess the number 11, your number is high। आप बताओ इसमें गड़बड़ क्या हुई है, गड़बड़ नहीं मतलब इनकम्प्लीट है ये, क्योंकि वो तो बाहर आ गया ना। आइडली आपको उसको बोलना चाहिए था, कोई पिंग कर रहा है तो बोलो, पिंग मत करो, सेशन में फिर विंडो चेंज हो जाता है ना। ये मुझे आई डोंट नो कैसे, बताओ आप क्या करेंगे, आपको समझ आ गई ना कहानी, आपको उसको अटेम्प्ट देते रहना है। क्या करोगे, हाँ लूप में डाल देंगे, ये बात। लूप कौन सी डालोगे आप, फॉर लूप। अगर आप, अब देखो बड़ी अच्छी बात है, इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर लूप तो मैं डाल दूंगा, लेकिन फिर कितनी बार अटेम्प्ट दोगे, अटेम्प्ट तो अनलिमिटेड है। नहीं मैं कह रहा हूं जब तक नंबर सही ना आए बाहर ही नहीं आना, तो आप वाइल लगाओगे। अगर आप उसको कहते हो नहीं भाई अटेम्प्ट ही 5 मिलेंगे, तो फिर फॉर लगेगा। दोनों से करके देख लेते हैं, समझे, ये चल पड़ा। अब हम इस पूरे के पूरे इफ को वाइल के अंदर लगाएंगे, क्योंकि ये अगर लूप के अंदर नहीं गया तो ये रिपीट कैसे होगा। और ये भी ध्यान रहे गाइस, इनपुट बॉक्स भी लूप के अंदर ही आएगा, क्योंकि लूप अगर चलेगा तभी तो बार बार इनपुट नया नया आएगा, उससे इनपुट भी तो लेनी है। तो यहां कहीं जाके मुझे लगता है हम वाइल लगाएंगे। वाइल क्या कंडीशन होगी बताओ, जब तक सीक्रेट नंबर समझ आ गया, सही बोल रहा हूं मैं, जब तक सीक्रेट नंबर गेस नंबर के इक्वल नहीं है, ये पुश करते रहो, इसको पूछते रहो। आई होप यही होना चाहिए। इंडेंटेशन तो मिलेगी उसे, बाकी देख लेते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे सीक्रेट नंबर और गेस नंबर सेम हुआ, हम लोग सीधा बाहर आ जाएंगे।
सीधा बाहर आ जाएंगे। और ये जो हमने एल्स लिखा है यहाँ पे, जैसे ये भी ठीक है, हाँ आई थिंक ये ठीक है। चलो रन करके देखते हैं। गेस नंबर इज नॉट डिफाइंड, इसका क्या मतलब है? मतलब क्या है बताओ, इस एरर का मतलब क्या हुआ? क्या गलती की हमने, मैंने? बताओ, यही तो बात है, सोचो। एरर्स की पकड़ होनी चाहिए। नेम गेस नंबर इज नॉट डिफाइंड। डेटा टाइप तो पाइथन ही देता है, आप थोड़ी देते हो। गेस नंबर है क्या? लिखा है कहीं हमने ऊपर? इसको वैल्यू नहीं दी ना हमने, एम्प्टी कैसे छोड़ सकते हैं हम? ठीक है ना। पहले कुछ और केस था, पहले हमने बेसिकली ये वाइल नहीं लगाया था, अब लगाया है। तो यहां से जब वो चला, उसके पास सीक्रेट नंबर वेरिएबल है, ये वेरिएबल है ही नहीं उसके पास। जब ये वेरिएबल उसके पास नहीं है, मतलब उसमें वैल्यू क्या देगा, वो कंपेयर कैसे करेगा? अब हम सोच रहे थे वो तो यूजर देगा ना, पर यूजर के देने से पहले भी तो ये लाइन तो यूजर, इस लाइन से पहले ये वाली लाइन आती है ना, उसको नीचे से मतलब नहीं है। वो कहेगा भाई मुझे तो यहीं पे क्लियर नहीं हो रहा, आगे मैं कैसे जाऊंगा, ये चीज है। तो हम लोग इसके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, अब देखो, मैं इस लाइन को पहले ले लेता हूं ताकि नंबर तो मिले, ठीक है। अब ये 10 है, उसने बोला नंबर है 2, ये लूप चल जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है, विच मीन्स ट्रू, लूप यहां पे आ जाएगा। जब लूप यहां पे आएगा तो मैं इमीडिएटली उसको गेस नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि पहले मुझे उसको ये बताना है कि आप कहां स्टैंड करते हो। ये सारा करने के बाद समझ गए, उसको पता तो लगे नंबर हाई है या नंबर लो है। तो ये लाइन यहां नहीं आएगी। लेकिन ये भी बात सही है कि ये इनपुट बॉक्स उसे, वो जो मैंने आपको शीट दिया था ना, वो इनसे मेंटेन करके मुझे आप दे देना। कौन सा शीट? पेपर टॉपिक वाइज साइन लेने पे। चलो मैं देखता हूँ। सर को सबमिट करने के। ये लाइन हमें दोबारा चाहिए होगी इस लूप में, ताकि गेस नंबर दोबारा आए। ये नहीं आ पाएगा बिकॉज ये लूप से पहले लिखा गया है, ये अब नहीं आएगा, ये एक ही बार आएगा। अब जब लूप चलेगा, इसके अंदर जो लिखा होगा वही बार बार आता रहेगा। तो आपको यही चीज डिसाइड करनी है कि गेस नंबर ऑलरेडी आप ऊपर से ले चुके हो, इमीडिएटली उसको नहीं देना है। पहले आप उसको यही बताने जा रहे हो कि भाई आपका नंबर हाई है लो है। फाइनली जब सब कुछ हो जाता है और लूप फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं एक बार फिर से गेस नंबर उसे दे दें। यहाँ ऐसा कुछ प्लान है, क्योंकि यहाँ पे वो या तो ये पब्लिश कर चुका होगा या ये, और फिर उसको वापस ये ऑप्शन मिल जाना चाहिए ताकि नया नंबर आए। फिर वो नया नंबर यहाँ पे तो जाएगा, फिर देखा जाएगा आप क्या करना है। ठीक है, देखें जरा गेस का नंबर देखिए। लूप से पहले एक नंबर आ गया, मैंने बोला नंबर इज 11, नंबर इज हाई आया, उसने फिर से आपको इनपुट बॉक्स दे दिया। नंबर हाई है तो मैंने कहा चलो 10 ले लो, अगर ये बड़ा नंबर है 10 ले लेते हैं। 10 के बाद देखो कोड रन हो गया, खत्म। लेकिन लूप खत्म, बट हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट करना है। अब समझने वाली बात यह है, ये क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि गाइस इसमें अभी भी फ्लॉ है। जैसे ही 10 मिला उसे, ये लूप फेल हो गया, इक्वल हो गए ना दोनों। अगर ये लूप फेल हो गया तो ये सारा स्किप हो गया होगा, विच इज वाई नंबर तो आपने गेस कर लिया,
बट सिस्टम ने आपको प्रॉम्प्ट नहीं दिया, इसीलिए मैं लूप के बाहर लिख देता हूं कांग्रेट्स। ठीक है, मे भी शायद हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, ये भी हो सकता है, हम इसको हटा देते हैं 1 मिनट। रीजन जो मैं सोच रहा हूं कि अगर ये इक्वल हो गए तो इसको वो स्किप करके सीधा यहीं आएगा, यहां पे तभी आएगा जब ये इक्वल होंगे, नहीं तो कभी नहीं आएगा, लूप चलता ही रहेगा बार बार, राइट। तो कांग्रेट्स यहां लिखने का ही फायदा है, यहां पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे तब लिखो जब नंबर मैच नहीं हो रहा है, ये चीज है। क्या समझे? समझो, लॉजिक सही है। गेस द नंबर 11, नंबर हाई 12, नंबर हाई 13, 9, नंबर इज लो 1, देखो बिल्कुल सही चल रहा है, 10 लो। क्लियर हुआ सबको? तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन सी लाइन कहाँ लिखनी है, और इसमें ही मेहनत लगेगी। ठीक है, शुरू में अब जैसे मैंने बोला, लास्ट प्रोजेक्ट करते हैं, अटेम्प्ट्स देने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कि चला रहे हो सारा दिन ही लगा देगा वो। ठीक है, वी से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने देंगे? 5। लेट्स से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टोटल 5 है। ध्यान से समझ लो, आप ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा मेरे हिसाब से। तो सीक्रेट नंबर तो वैसे ही रखोगे आप, इसको सेट करना पड़ेगा, भी करते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 5 हैं, इसका मतलब क्या हुआ? लूप कितनी बार चलना चाहिए? 5 बार। फॉर, नाम मैं भी बढ़िया सा दूंगा इस बार, इन रेंज 1 to 6। ठीक है, ये हो गया 1 to 6। अटेम्प्ट्स यहां से 1 उठाएगा, अपना काम शुरू कर देगा, राइट, और ये ऐसे चलता रहेगा। अब हमें करना क्या है, क्योंकि अच्छा चलो पहले देखते हैं, तो सेव करता हूं। इसमें टोटल 6 अटेम्प्ट हैं, 5 हैं, तो डेफिनेटली कोड कहीं ना कहीं रुकेगा, इनफाइनाइट नहीं बनेगा जितना मैं समझता हूं। तो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं, क्योंकि हर चीज आप शुरू में दिमाग में नहीं प्लान कर पाओगे, नए नए हो आप। इसमें बोलो 11, नंबर इज हाई, गेस द नंबर 11, 3 4 5, खत्म। ठीक है, 5 अटेम्प्ट मिल गए उसे। अब करना क्या है गाइस, क्यों ना उसको ये भी बताया जाए कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने रह गए। ठीक है ना, क्योंकि उसको पता नहीं लग रहा है यहाँ पे, देखो इस प्रोग्राम में। तो क्या करेंगे बताओ, कैसे हैंडल करोगे? जैसे जब आपने से बोला नंबर इज लो, साथ में इसके कॉमा लगा के, या मतलब इसके साथ एक इंफॉर्मेशन आ जाए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट नाउ 5 4 3 2, और बीच में अगर कहीं उसने नंबर क्रैक कर लिया तो ऑब्वियसली फिर तो बात ही खत्म, फिर तो सीधा हम बोल देंगे यस। बताओ, सोचो। कोई तो बताओ, कोई आइडिया नहीं है? आप बताओ, आपने तो किया है पाइथन, कुछ तो आइडिया दो।
देखो कोड तो आप अभी चैट जीपीटी से ले लोगे, फिर उसका करोगे क्या, पहले खुद सोचो। दुनिया बोल रही है ना कि भाई अब तो सब आ गया है, तो उसको कॉपी पेस्ट पे तो ऐसे कोड नहीं चल सकते ना, आप कर ही नहीं पाओगे, आपको डर लगेगा यार क्या कर रहा हूं मैं। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑटोमेट कैसे होंगे। वेरिएबल ही एक ऐसी चीज है जो चीज वैल्यू स्टोर करती है और आप उसको चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूं कि एक वेरिएबल है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है, आप उसको वैल्यू दे दो 5, इससे पहले लूप में जाए वो, ठीक है। अब देखना ये होगा कि ये अटेम्प्ट 1 लेके चला, सबसे पहले इसने वैल्यू ली यहां से, मैं फर्स्ट टाइम रन होने जा रहा हूं, ठीक है, जाओ यहां पे गए, सपोज ये प्रिंट हो गया, मान के चलो, राइट। जैसे ये प्रिंट हुआ, इसके नीचे एक प्रिंट आ जाना चाहिए, योर अटेम्प्ट्स आर नाउ 4, करेक्ट। या लेट्स से ये नहीं हुआ, ये हो गया, फिर ये, तो फिर इसके नीचे आ जाना चाहिए प्रिंट अटेम्प्ट्स आर 4, मानते हो। बजाय यहां प्रिंट लिखे और यहां प्रिंट लिखे, इनका एक ही प्रिंट बना देते हैं, विच इज व्हाट, या पहले ऐसे कर लीजिए, आपको आसानी रहेगी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर इज हाई, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट, नाउ कितने कितने, वेरी गुड। कोई ये ना बोले 4, फिर ये हर बार 4 ही प्रिंट होगा। वेरिएबल्स का फायदा उठाओ ना, ये तो मैंने उसने वेरिएबल क्लास में बताया था आपको। नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑलरेडी आपको पता है, वो जो भी है उसमें -1, ठीक है। इसी को कॉपी करके यहां भी कर देते हैं, बिकॉज यहां भी नंबर फेल हो रहा है, तभी तो यहां आएगा वो, इस तरह से। इसमें भी अभी कोई दिक्कत मुझे लग रही है, पर पहले से रन करके देखते हैं, ठीक है। चलो लेट मी रन दिस, गेस द नंबर 12, देखो नंबर इज हाई, नंबर ऑफ टेम्प्ट्स लेफ्ट नाउ 4, 12। समझ आया क्या हो रहा है, बताओ। हाँ क्यों हो रहा है, हाँ ये 5 ही है, यहाँ पे 5 - 1 5 - 1 यही होता जा रहा है। तो क्या सोल्यूशन है, आपको इस 5 को एक्चुअल में 4 करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम 4 - 1 हो फिर हर बार, यस, क्योंकि जब वो 4 होगा तभी तो 4 - 1 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम अगर वो यहां आया फर्स्ट टाइम, या यहां आया, दोनों में से एक ही जगह आएगा वो, ये 4 हो चुका होगा, करेक्ट, 5 - 4 हो चुका होगा। लेकिन अगली बार के लिए अगर ये दोबारा यहां आया, तो ये 4 होना चाहिए। फिर उसके लिए आप इसी वेरिएबल को दोबारा से एक बार यहां पे माइनस करोगे, यहां भी, क्योंकि ऐसे करने से उसमें वैल्यू चली जाएगी, यहां पे जा नहीं रही है, यहां पे सिर्फ माइनस हो रही है, बट यहां पे जो माइनस होगा वो इसमें सेव हो जाएगा और ये वाला ओवरराइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन उस दिन किसी ने मुझसे पूछा था, शिवांगी पूछी थी कि इस तरह से मतलब हम लिख सकते हैं, क्यों लिखते हैं। अब ये इसका बिल्कुल क्लासिक एग्जांपल है, आपने जो वैल्यू दी वो जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम में उस प्रोग्राम में वो वही रहे, हम इसको यहाँ पे कम करते जा रहे हैं। अब हमारा प्लान क्या है, देखो उसने नंबर दिया आपको 12, ठीक है, 12 दिया, 12 इज ग्रेटर देन 10, उसने कहा नंबर इज हाई, 12 - 1 सॉरी 5 - 1, उसने आपको मैसेज दे दिया, आपके अटेम्प्ट्स 4 रह गए, करेक्ट। अब ये 4 सिर्फ पेपर्स में हुआ है, ऑन द फ्लाई। अभी भी अगर वेरिएबल के वैल्यू देखी जाए, इस लाइन के बाद अगर मैं सीधा प्रिंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट कर दूं, पाइथन 5 ही देगा,
ये नहीं करना है। आपने 4 उसको दिखा दिया, लेकिन आप यहाँ खुद भी वो उसको माइनस करके उसमें स्टोर करोगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है? 5 माइनस 1 4। तो अब यहाँ जाके वो सेव हो जाएगा 4। अब प्रोग्राम दोबारा रन हुआ, दूसरा अटेम्प्ट। अब नंबर उसने दिया 11, ठीक है। 11 अगेन इज हाई, राइट। ये क्या हो चुका है अब? 4 माइनस 1 3। यहां भी 4 होगा, 4 माइनस 1 3। ये 3 जो यहाँ है ये एक्चुअल में इसके लिए बनाया जा रहा है कि यहाँ 3 माइनस 1 हो सके, ठीक है। फिर आपने नंबर 9 लिखा, ये सब फेल हो गया, उसी का यहाँ आ गया, उससे का नंबर लो। ऑब्वियसली नंबर ऑफ अटेम्प्ट में क्या पड़ा होगा उस टाइम? लेट्स से 3 होगा, तो 3 माइनस 1 2। और वही चीज फिर आप यहाँ पे उसको दे भी रहे हो। सेव कराना बहुत जरूरी है वैल्यू। जैसा BI में वो मेजर्स की हम बात कर रहे थे कि ऑन द फ्लाई बनता है सब कुछ, उसी टाइम के लिए वो यूज हो रहा है। वो नहीं करना है, हमें इसको बनाना है कैलकुलेटेड कॉलम की तरह, ये एग्जिस्ट करे, क्योंकि इसकी जरूरत है यहाँ इस तरीके से। देखें, इनवैलिड क्या रहे? एक मिनट, हाँ, गेस द नंबर 11। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 4, 11 3 9 2। नंबर भी लो हो गया, 1 एक रह गया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 0, खत्म, ठीक है ना। इट मीन्स चल रहा है। एक बार फिर चले, नंबर 10 सीधा ही। ओके, अब गड़बड़ हुई है कुछ? गेस द नंबर आई जा रहा है? देखो ये तो नहीं आया ना, ये आएगा भी क्यों? नंबर गैस हो गया ना, तो वो यहाँ गया नहीं होगा, वो यहाँ पे चला गया। लेकिन क्या करे हो? हाँ, ये बेसिकली देखो, मैं फिर 10 करता हूं, ये 6 बार 1 2 3 4 5, ये गड़बड़ है, क्योंकि सीक्रेट नंबर फर्स्ट टाइम ही क्रैक हो गया है। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं ना, ये आपने लगाई रखा है, मुद्दा ही खत्म करते हैं। आप सीधा यहाँ आओ, देखो, एल्स वो वाइल था, ये एल्स गेस नंबर या नंबर सेम ही होगा, तो सीधा प्रिंट करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। अदरवाइज वो इसमें आएगा क्यों? लेस, अगर नंबर ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन नहीं है, तो इक्वली होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और साथ में ब्रेक कर दिया हमने कि लूप में अब नहीं जाना है आपको, समझ गए। और इसका अब हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ, तो ब्रेक हो गया तो ये भी खत्म, ये भी नहीं आएगा फिर। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी हम देखते हैं। 10 लो जी, बन की बात, यही चाहिए था आपको। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर नंबर, योर guess is correct. लो जी, इस तरह से।
बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें? अगर आपको इसमें ये मेंशन करना हो कि जब बंदे ने गेस किया है कौन से अटेम्प्ट में कर लिया था, वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, जो मुझे लगता है कि लेट्स से वेरिएबल का नाम है कुछ भी देता हूं, अटेम्प्ट अंडरस्कोर इंस्टेंस। पहले इसको हम रखते हैं लेट्स से 0। ये एक वेरिएबल मैंने बना लिया है, अटेम्प्ट इंस्टेंस 0। ठीक है, अब या फिर हम इसको भी यूज कर सकते हैं देखा जाए तो। अगर ये 5 है यहां पे पहुंचते हुए, अगर आपका कर्सर यहां आ जाता है और हम यहाँ पे इफ लगा लें कि अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट 5 ही है अभी भी, इसका मतलब उसने पहली बार ही क्रैक कर लिया, ये हम कह सकते हैं। और अगर नहीं तो अदरवाइज जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं अगर वो 3 बचे हैं तो उसको 5 में से माइनस करके उसका सेकेंड अटेम्प्ट होगा, फिर सिंपल है ना, ये कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर गेस इज करेक्ट। और एक ही लाइन में लिखेंगे, यहां पे हम एक काम करते हैं, यहां पे करते हैं, रुको। अब देखो मैं एल्स के अंदर भी इफ लगाने जा रहा हूं, देखें अलाउ है कि नहीं। इफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब हुआ? उससे पहली अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया नंबर, है ना, यही मतलब हुआ। योर गेस इज करेक्ट, योर attempt was, it was your first attempt, it was your first attempt। ये तो सीधा ही लिख देते हैं ना, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। ये पहली चीज ये, और इसको मैं, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर गेस इज करेक्ट। उसके बाद बस एक मैसेज ये देना चाहेंगे कि इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। अब अदरवाइज अगर ये 5 नहीं होगा तो अब कुछ ना कुछ तो ये नंबर होगा, राइट। तो सिंपल मे बी हम ऐसा कुछ कर दें कि इट वाज योर, यहां पे वेरिएबल बनाएंगे, इट वाज योर 5 माइनस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, शायद ऐसे। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर सपोज 2 रह गए तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। मतलब मोटा मोटा आइडिया चाहिए ये सब कैसे लिखा गया है, बाकी तो आप खुद कर ही लोगे। और इससे हटा देते हैं, हाँ ये देखिए, और ब्रेक को भी सेट करना पड़ेगा हमें। तो हाँ, ये चाहे कुछ भी हो, पॉइंट ये है अगर वो एल्स में आ गया, नंबर मिल चुका है उसे, कोड ब्रेक होना ही चाहिए, लूप ब्रेक होना ही चाहिए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, अगला गेस नंबर नहीं देना है। कॉन्ग्रेचुलेशन देने के बाद बस उसे एक ये बताया जा रहा है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या जो भी अटेम्प्ट था, दैट्स इट। उसके बाद कोड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। चलो देखते हैं, आई एम नॉट श्योर। गेस द नंबर 10, लो जी, वेरी नाइस। फिर से रन करें, गेस द नंबर 12, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट नाउ दिस 12। अब 10 करता हूं, देख रहे हो, इट वॉज योर सेकेंड अटेम्प्ट, बेसिकली थर्ड होगा शायद, वो आप देख लेना, मतलब यहाँ पे +1 करके या जो भी आपको करना है वो आप कर लेना, बट हमें वो जो मुझे चीज चाहिए थी वो मिल गई, समझ रहे हो, इस तरीके से। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें अगर हम +1 कर देंगे ना
हो जाएगा, यू कैन चेक, क्योंकि वो ऑलरेडी -1 होके आ रहा है। बट दिस इज हाउ वी राइट द प्रोग्राम्स, समझ गए? और अब इसकी जरूरत नहीं है। तो अब आपको यही करना है कि ये करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, इस कोड को चैटजीपीटी पे आप जाके बोलो कि आई वांट टू डू द सेम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विद डिफरेंट एग्जांपल, विद डिफरेंट पैटर्न, ठीक है? तो ये आप जब तक 6, 7, 10 ऐसे प्रोग्राम्स नहीं बना पाओगे, आप लूप्स और इफ में मास्टरी नहीं कर पाओगे। और खास ख्याल रहे, एल्स के अंदर इफ आपने सोचा भी नहीं होगा, ना मैंने करवाया था, बट जैसे मैंने बोला लॉजिक्स अगर आप सही लगा रहे हो तो आप कहीं भी लगा सकते हो। एल्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे इफ लगा लूं और लगा लूं, क्या दिक्कत है? इंडेंटेशन, इफ, एल्स सब लगा रहा हूं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? तो इस तरह से इफ बड़े डायनामिक बन जाते हैं। सो एक बार नाम लिख दो आप, आज डेट डाल के ऊपर पाइथन लिख देना। ऑनलाइन में देख लो आप पहले कौन कौन है। एक मिनट रुकना गाइस। सैटरडे संडे का देख लेना आप, ठीक है? एटलीस्ट सैटरडे कर लो अगर संडे नहीं आ सकते, बिकॉज आपके काम तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा वीकेंड पे आना, बट ठीक। ऑनलाइन के देख के नाम लिख दो। हो गया? ऑनलाइन वालों के पे हो गया? ठीक है। इसमें
कौन कौन है ऑनलाइन आज? रोजी आ गए? रोजी लास्ट में रोजी है। एक तो शिवांगी थी आज ऑनलाइन? नहीं, शुभी थी ना? और शुभी के साथ एक और कौन है? श्रेया आबू। और कौन है? एक और थे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, प्रियंका। उनका भी लिख दिया? चलो ठीक है।